Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous lecture में we had discussed about the growth rate forms. हम लोगों ने growth rate के बारे में पढ़ा था and we had discussed about the comparisons between absolute growth rate and relative growth rate. All right, इस lecture में we will be discussing about the conditions that are actually required for growth of an organism या plant के growth के लिए कौन से ऐसे conditions होते हैं जो बहुत important role play करते हैं उनके nutrition में, उनके growth and development में. Alright, so we'll be dealing with the conditions that are actually required for the growth and development of plants. Alright, so जो essential conditions होते हैं that are actually required for the growth of plants, it includes several factors. वो कई factors को include करता है जिसमें सबसे पहला important and crucial factor जो है वो water होता है and water is actually a center. Yeah, water is actually a medium that controls all the enzymatic activities that are taking place inside a plant cell. So जितने भी कोई भी enzymatic activity अकर करने के लिए या कोई भी metabolic activity जो plant करता है या उसके अंदर अकर करता है, so that's the medium, a kind of a medium is required and that medium is served by water. वो water serve करता है. So it is the center of all the enzymatic activity that takes place inside a plant cell. While water is also required for maintaining the turgidity of cells. ये कहीं ना कहीं turgidity of cells को भी maintain कराता है. That means a kind of providing an ability of a cell to expand itself, to stretch itself, एकदम fully turgid form में हो. Alright, water से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है या एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं अ काइंड ऑफ अ रिएक्टेंट विच इज दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द प्लांट सेल और दैट टेक्स प्लेस थ्रू क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल्स. ऑलराइट, तो ये वाटर हम we can consider it as a medium जिसके थ्रू सारे ये important and essential parameters are actually controlled in a plant cell. Considering the second factor involves oxygen, दूसरा factor oxygen होता है. Oxygen plays a very important role. It is responsible for it acts as a medium through which energy is released. तो oxygen से कहीं ना कहीं हमें energy it's a main source through which energy is utilized or energy is released actually, and that energy is ultimately utilized by plant cells for carrying out their own metabolical activities. तो respiration के लिए, plant respiration के लिए oxygen plays a very important role. इसके अलावा plants they not only give oxygen via photosynthesis but they also intake oxygen through respiration process. So oxygen भी कहीं ना कहीं important role play करता है in releasing the metabolic energy in the form of ATP. And the third important thing is are the nutrients. अब ये जो nutrients होते हैं, these nutrients are of basically two types. One is the macronutrient and the other is the micronutrient. Now these macro and micronutrients are termed so that इनका concentration के basis पर इनको distinguish किया गया है. Macronutrients are named so because they are required in larger amount and larger concentration. ज़्यादा amount में इनकी requirement होती है, so that's why they are termed as macronutrient. While micronutrients are named so because they are required in small amount. Macronutrients basically includes nutrients like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, magnesium. ये कुछ ऐसे component हैं जो कि structural integrity of plants को के लिए responsible होते हैं, functionality के लिए responsible होते हैं, and for many other purposes they play a very important role, acting as cofactors and many other things. While mineral micronutrients basically involves like zinc, iron, cobalt, manganese, copper. So these are the micronutrients which are actually required by plants in trace amounts. तो इनकी requirement trace amounts में होती है, but yet also these trace amounts and concentration of these micronutrients plays a very important role in in maintaining their structural integrity, in maintaining their functionality and in carrying out other metabolical processes. So ये इनके बीच का होता है. इसके अलावा nutrients हम बोल सकते हैं कि nutrients plays a very important role in the synthesis of protoplasm. So कहीं ना कहीं
सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म में अगर कोई वियरिंग एंड टीयरिंग हुई है सेल्स की, प्लांट सेल्स की, तो उसके जॉइनिंग में, उनके पैकेजिंग में, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आई विल बी राइटिंग डाउन हियर द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज 3 न्यूट्रिएंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस these 3 essential nutrients which are water, oxygen and nutrients. वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं, so temperature is also one of the most important abiotic factor that plays a very important role in growth of the plant body. और ये कहीं ना कहीं optimum growth के लिए optimum temperature का होना बहुत ज़रूरी है. neither some plants they are adapted to a very high temperature, some plants are adapted to low temperature, and some plants are have a medium or an optimum temperature for their growth and living conditions. So that kind of temperature availability has to be there for providing proper growth to these plants. On the other hand, लाइट की जब हम बात करते हैं तो लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के ग्रोथ में. इन फैक्ट देर आर मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्लांट दैट आर एक्चुअली बीइंग परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वेदर इट इज़ फोटोट्रोपिज्म और वेदर इट इज़ फोटोपीरियोडिज्म. फोटोट्रोपिज्म इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द प्लांट while in response to light, while photoperiodism is actually a phenomena जिसके थ्रू flowering response होता है plant में with respect to light or in response to light. So light also plays a very important role. Gravity also plays a very important role in the growth and development of plant body. So I'll be writing down here the features of all the conditions that are actually required for growth. So water is actually responsible for maintaining the turgidity of cells, and it acts as a medium for carrying out all the enzymatic or metabolical activities of cells. On the other hand, when we consider oxygen, so it basically acts as a source for releasing energy in the plant cells in the form of ATP. And when we consider nutrients, so nutrients दो फॉर्म्स में हो सकते हैं. इट कैन बी either macronutrient और इट कैन बी either micronutrient. तो दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं, एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन. इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी में अलग अलग होती है. सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी. So apart from all these factors, above mentioned factors, optimum temperature, light and gravity are also the important conditions that are required for the growth of the plant. So these were the conditions जो कि plant growth के लिए responsible होता है. The next which we will be dealing actually will be the three important terms जो कि plant के growth and development में बहुत important role play करते हैं, and that is differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. So there is differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. Alright, so differentiation, सबसे पहले हम differentiation की बात करते हैं. डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है या वो वे है जिसके थ्रू सेल्स ऑफ रूट एपिक्स, shoot apex and cambium they mature to perform a specific function. That means a process in which the cells of root apex, shoot apex and cambium एक वो लेयर होता है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है या प्लांट टिश्यूज़ में एक्चुअली प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन सेकेंडरी ग्रोथ. वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी बताया है. सो कैम्बियम इज़ द लेयर दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट बॉडी. तो जो सेल्स होते हैं रूट एपिक्स एंड शूट एपिक्स के एंड कैम्बियम के, ये तीनों जो सेल्स होते हैं ना, ये अपने आप में डिफरेंशिएट करते हैं, ये डिवाइड करके डिफरेंशिएट करेंगे एंड मैच्योर करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. एंड क्योंकि ये मैच्योर कर चुके हैं, सो डेफिनेटली दे विल लूज द एबिलिटी ऑफ डिविजन. सो दे लूजेस द एबिलिटी ऑफ डिविजन आफ्टर गेटिंग डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर एंड अल्टीमेटली मैच्योर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन.
ठीक है। डिफरेंशिएशन में देर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्वॉल्व, सेल वॉल में स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, प्रोटोप्लाज्म में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं कई सारे। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स होता है, दैट मीन्स जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, दे एक्चुअली लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। वो इनिशियली यंग में वो जो इन यंग स्टेज होता है जाइलम वेसल्स का, दे आर लिविंग कंडीशंस, बट as soon as they turn into a mature condition, maturity में जैसे वो आते हैं, so they lose their protoplasm and becomes dead. Alright, तो ये फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक, कमिंग टू डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन वो होता है जिसमें जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, अब अभी क्या था कि वी वर डीलिंग कि डिफरेंशिएटेड सेल है, तो अब वो अगर मेच्योर हो चुका है, सो डेफिनेटली इट विल लूज द एबिलिटी ऑफ डिविजन। बट जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसा मिलता है उनको जिसमें कि वो फिर से रीगेन कर लेते हैं अपने कैपेसिटी को टू डिवाइड। Alright, so the living differentiated cells that by now have lost the ability of division will regain the capacity of division under certain conditions. तो उनको कुछ conditions में वो क्या करते हैं ना, जब उनको कुछ conditions मिलता है, so under certain conditions they regain the capacity of division. Alright, जो lose कर चुके थे, now they will regain the capacity of division, उसको हम कहते हैं de-differentiation. Like for example, cells of interfascicular cambium and cock cambium. ऑलराइट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो सेल्स होते हैं जो कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू मेड्यूलरी रेज। शॉर्टली अगर मैं बोलूँ या अगर इसको मैं सिंपली बोलूँ तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये एनुअल रिंग्स बनाता है। एंड कॉर्क कैम्बियम जो होता है, कॉर्क कैम्बियम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी प्लांट बॉडी, विच इज दैट कंसिस्ट ऑफ फेलम, फेलोजेन एंड फेलिडर्म, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ऑलराइट, तो ये पेरिडर्म का पूरा कॉम्बिनेशन बनाता है जो हमें सेकेंडरी प्लांट बॉडी के आउटर मोस्ट एरिया में मिलता है, आउटर मोस्ट पार्ट में मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज de-differentiation. And coming to re-differentiation part, re-differentiation वो प्रोसेस है जिसमें कि क्योंकि जो डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स थे वो रीगेन कर चुके थे कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। नाउ अब क्या होता है कि री-डिफरेंशिएशन में फिर से वो सेल क्या करते हैं, यानी कि जो डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स थे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करके, अपने एक्टिविटी परफॉर्म करके वो फिर से जब एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवीजन की, सो दैट डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स चेंजेस इनटू री-डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो वो कहीं ना कहीं री-डिफरेंशिएटेड सेल्स में चेंज हो जाता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज री-डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, तो इसमें अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कि सेल्स दे मेच्योर, दे डिफरेंशिएट एंड मेच्योर एंड लूज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हियर द डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये वो फिनोमेना है जिसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से रीगेन कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस, एंड री-डिफरेंशिएशन में वो फिर से लूज कर देते हैं। तो यहाँ पर लूज किए, यहाँ पर डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज किए, यहाँ पर फिर से रीगेन कर लिए, एंड यहाँ पर फिर से वो लूज कर देते हैं। तो ये एबिलिटी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन एंड री-डिफरेंशिएशन। सो इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बोलेंगे। सो सच सेल्स दे एक्चुअली अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। तो दोनों में इनका स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो हो जाएगा, so the trachyary element actually loses their protoplasm on maturity. Alright, तो इसमें डी-डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स थे जो यहाँ पे एबिलिटी लूज कर दिए थे डिवीजन की, इट विल अगेन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस। और इसमें वो जो सेल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं डी-डिफरेंशिएशन में, दैट इंक्लूड्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट डी-डिफरेंशिएशन। सो दिस इज़ अबाउट री-डिफरेंशिएशन प्रोसेस। सो ये डिफरेंसेस था बिटवीन डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन एंड री-डिफरेंशिएशन के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेवलपमेंट, ये ग्रोथ के बारे में था सारा सब कुछ, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट हाउ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट takes place in plant cells or in the plant body. Thank you.